پھوری کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ خالدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی چھوٹی خالہ صفیہ فاطمہ اور پھوری کو زندگی دے کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ بعد ازاں پھوری کے باپ نے فضیلت بی بی نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ فضیلت بی بی سے حبیب احمد کی 4 اولادیں تھیں۔ مطلوبہ دروازے پر پہنچ کر اے ایس اے نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذیل عمر شخص نے دروازہ کھول دیا اور ہم پر نظر پڑتے ہی سوال کیا، جی فرماؤ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا، غفور عرف پھوری کا گھر یہی ہے؟ اس شخص نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، میں پھوری کا باپ ہوں، آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ کام بہت ہی اہم ہے۔ میں نے کہا، وہ ہے کہاں، ذرا باہر تو نکالے اسے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر بولا، آپ یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں تمہارے بیٹے کی خاطر۔ بیٹے کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک نامعلوم سی بیزاری پھیل جاتی تھی۔ اس نے کہا، آپ کس سلسلے میں پھوری سے ملنا چاہتے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، وہ ذرا ہاتھ تو چڑھ جائے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا اس نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، ہم اسے ایک قتل کے سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ مولوی نور شاہ کی چھوٹی بیٹی عابدہ پروین کو ہمارے علاقے میں قتل کر کے بھاگا ہوا ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ بولا تھا، اس سے میرا ایک خاص مقصد وابستہ تھا۔ مولوی نور شاہ کی بیٹی؟ اس کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ تو 1 ماہ سے کبیر والا گئی ہوئی ہے اپنے ماموں کے پاس۔ نور شاہ نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ نور شاہ نے سب کو یہی بتایا ہوا ہے چاچا، اے ایس آئی نے کہا۔ مگر وہ جھنگ کس طرح پہنچ گئی؟ میں نے کہا، جس طرح خالدہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی، آپ اندر آئیں۔ میں نے کہا، اندر آنے کی ضرورت نہیں حبیب احمد، تم ہمیں پھوری کے بارے میں بتاؤ، ہم اسے بے تابی سے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کئی دن سے غائب ہے، حبیب احمد نے بتایا۔ کئی دن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے 1 ماہ تو ہوا ہی گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس نے بتایا ہوگا کہاں جا رہا ہے؟ وہ کبھی بتا کر نہیں جاتا، حبیب احمد نے جواب دیا۔ میں اس بدبختی حرکت سے بہت نالاں ہوں، آئے دن اس کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے تنازع۔ میں تو تنگ آ گیا اس کی کرتوتوں سے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، لیکن قتل میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مذاق نہیں حبیب احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا بیٹا عابدہ کا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچا تھا، عابدہ قتل ہو چکی ہے اور پھوری غائب ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، جناب میں ایک عزت دار آدمی ہوں، آپ اندر بیٹھ کر بات کریں، دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم اس کی فرمائش پر گھر کے اندر جا کر بیٹھ کے میں نے پوچھا، حبیب احمد، میں نے سنا ہے پھوری عابدہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ او جناب، وہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پھوری نے عابدہ کی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، یہ سب نور شاہ کا چلایا ہوا چکر ہے۔ تو کیا پھوری عابدہ کا رضائی بھائی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے دائی بشیرہ کی گواہی پر فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ اس کی بیوی نے پھوری کو اپنا دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ رضائی بہن بھائی ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف پروپیگنڈا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دراصل بات یہ کہ جب پھوری پیدا ہوا تو میں گھر پر نہیں تھا، حبیب احمد نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ان دنوں میں کسی ضروری کام سے سرائے سدھو گیا ہوا تھا، اور جہاں تک مولوی نور شاہ کے پروپیگنڈا کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے اس نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے تھانے دار صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پھوری بری صحبتوں میں پڑھ کر بہت بگڑ چکا ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی اسے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو ممکن ہے وہ سدھر جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھوری کی بس ایک ہی رٹ ہے کہ وہ ہر صورت میں عابدہ ہی سے شادی کرے گا، اور اگر عابدہ کی شادی اس سے نہ ہوئی تو وہ اور کسی سے اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا کہ وہ اس قسم کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ دھمکیوں کی بات ہو رہا ہے جناب، لیکن وہ قتل نہیں کر سکتا۔ حبیب احمد نے پورے وثوق سے کہا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، مجھے ایسے شواہد ملے ہیں کہ پھوری عابدہ کا تعاقب کر رہا تھا، باقی باتیں میں اس سے اگلواؤں گا۔ حبیب احمد نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، عابدہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ اب اس بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے مختصراً حبیب احمد کو بتا دیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ماسٹر جمیل تو بڑا بیبا بندہ نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے خیالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا پھوری پہلے بھی کبھی اتنے دنوں کے لیے غائب ہوا ہے؟ جی ہاں، اس کا یہی وتیرہ ہے، حبیب احمد نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، 1-2 بار حوالات کی بھی ہوا کھایا ہے۔ کس سلسلے میں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، لڑائی جھگڑے اور بلوے میں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے بندہ عادی مجرم ہے۔
छोटी मोटी गड़बड़ तो वो करता ही रहता है, हबीब अहमद ने कहा। कत्ल वाली बात पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आया थानेदार साहिब। इस पर भी यकीन आ जाएगा हबीब अहमद, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। जब वो खुद अपनी जुबान से अपने जुर्म का अकरार करेगा तो तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। हबीब अहमद ने पूछा, मास्टर जमील को तो आपने अगवा के जुर्म में जरूर गिरफ्तार कर लिया होगा, वो भी मंजर से गायब है। मैंने कहा। क्या मतलब? हबीब अहमद ने आंखें फैलाई। एएसआई ने चुपते हुए लहजे में कहा, चाचा लगता है तेरे लश्कर पुत्र ने इसे भी कहीं ठिकाने लगा दिया है, यानी दोहरा कत्ल। हबीब अहमद ने सरासीमा नजरों से मुझे देखा। ये तो फूरी ही बताएगा। आपको मास्टर जमील की लाश भी मिल गई है? मैंने कहा, कल हम मास्टर जमील की तलाश में तलम्बा जाएंगे और इसका कोई सुराग न मिला तो इस सूरत में तुम्हारे बेटी की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एएसआई ज़हूर हुसैन ने कहा, यह तो फूरी ही बताएगा कि इसने मास्टर जमील को कत्ल करके कहाँ दबाया है। हबीब अहमद अब इंतहा दर्जा खूबसूरत नजर आ रहा था। वो अपने बेटे के करतूतों से वाकिफ था, लिहाजा इसे तोको नहीं थी कि फूरी कत्ल जैसे इक़दाम पर उतर आएगा, और वो भी दोहरा कत्ल। इसका परेशान होना भेजा नहीं था। मैंने पूछा, हबीब अहमद क्या तुम्हें अंदाजा है कि फूरी कहाँ जा सकता है? मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे कुछ नहीं बताता, पता नहीं किस किस से इसने दोस्तियां पाल रखी हैं। हबीब अहमद ने जवाब दिया। इसके दोस्तों के बारे में तो कुछ जानते ही होगे। कोई नहीं जानता, बस वही जानता है। हबीब अहमद ने उकताहट आमेज लहजे में जवाब दिया। वो बहुत दूर दूर तक जाता रहता है, फाजिल शाह, अहमदपुर सियाल, महाराजागढ़ और अथरान हजारी, पता नहीं कहाँ कहाँ खारी करता फिरता है। कभी तो वो दो माह घर नहीं आता। हबीब अहमद ने जिन जगहों के नाम गिनवाए थे, इन्हें सुनकर मैं चौंक उठा। इनसे बेशतर इलाके झंग जिला में थे, खास तौर पर अथरान हजारी तो हवेली बहादुर से ज़्यादा दूर नहीं था। ये इलाका दरिया की दूसरी जानिब झंग के मगरबी हिस्से में वाक़ था। मैंने हबीब अहमद से कुछ और सवालात भी किए, मगर तसल्ली बख्श नतीजा बरामद न हुआ। वो अपने नाखल बेटे फूरी की खुफिया सरगर्मी से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने हबीब अहमद से पूछ दिया, हबीब अहमद तुम्हारे पास फूरी की कोई तस्वीर वगैरह तो होगी? तस्वीर? इसने ख्याल अंगेज अंदाज में कहा। आप ठहरे, मैं अपनी घरवाली से पूछता हूँ, शायद तस्वीर वाले डब्बे में फूरी की भी कोई तस्वीर मौजूद हो। वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। हबीब अहमद ने अपनी पहली बीवी की वफात के बाद फजीलत नामी एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कुछ देर बाद हबीब अहमद वापस आया, बैठक में आया और एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर मेरी जानी बढ़ा दी। वो एक क्लोजअप था। पूरी अपनी शक्ल सूरत से ही कोई छटा हुआ बदमाश दिखाई देता था। अगरचे तस्वीर ब्लैक एंड वाइट थी, ताहम मुझे अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो सुर्ख आंखों वाला एक सियारू शख्स था। इसके सर पर छोटे छोटे घुंघराले बाल थे, कानों में छोटी बालियां थी और गर्दन में इसने एक मफलर नुमा कपड़ा डाल रखा था। वो बना बनाया किसी पंजाबी फिल्म का विलन नजर आता था। मैंने फूरी की मज़कूरा तस्वीर अपनी जेब में रख ली और उठते हुए कहा, हबीब अहमद जब तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती हम खानेवाल में ही रहेंगे। इस दौरान में अगर तुम्हें फूरी के बारे में किसी किस्म की सुनगुन मिले तो फौरन थाने में इतला देना। हमारा क़याम इलाके के थाने में ही है। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, वो फर्मा बरदारी से बोला। मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि वो किसी कत्ल की वारदात में भी मुलविस हो सकता है। मैंने कहा, जब यह केस मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा तो सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी। मैं हर कीमत पर दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूँगा। थानेदार साहिब, वो झिझकते हुए लहजे में बोला, एक बात मेरे ज़हन में खटक रही है। ऐसी कौन सी बात है? हबीब अहमद ने कहा, आपने बताया कि मास्टर जमील बहार अभी तक लापता है। हाँ, हम इसे भी ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, वो बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में आएगा। इसका जुर्म कम संगीन नहीं है, अगवा कोई मामूली जुर्म नहीं। हबीब अहमद, ऐसा भी तो हो सकता है। हबीब अहमद ने ख्याल अफरोज अंदाज में कहा, मास्टर जमील ही ने आपदा को ठिकाने लगा दिए हो, ये नामुमकिन तो नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैंने संजीदा लहजे में कहा। जिन इम्कानात का तुम जिक्र कर रहे हो वो पहले से मेरे जहन में मौजूद है। तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हारा बेटा किसी भी तरह इस मामले में मुलविस नहीं तो इसके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। फिर हम हबीब अहमद के घर से बाहर निकल आए। थाने की जानिब जाते हुए एएसआई ज़हूर हुसैन ने कहा, मलक साहिब एक बात है, और वो ये कि हबीब अहमद की बात में मुझे काफ़ी वजन महसूस हुआ है। कौन सी बात में ज़हूर हुसैन? वो जो इसने मास्टर जमील के बारे में कही है। मैंने पूछा, यानी तुम्हारा भी ख्याल है कि मास्टर जमील ही आपदा की मौत का जिम्मेदार है? मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता। ज़हूर हुसैन ने कहा, अलबत्ता ये बात मेरे दिल को लगी है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, ऐसा होना नामुमकिनात में से तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई मजबूत जवाब अभी सामने नहीं आया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया। खालिदा के बयान के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते थे। फिर बगैर मजबूत जवाब के ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि जमील बहार ने अपनी महबूबा की जान ले ली हो। इलावा अजी आबिदा के ख़त से फूरी के बारे में जो इंकशाफात हुए हैं, इन्हें भी किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल वो इन दोनों के ताक़ुब में तो था
और जाहिर है किसी नेक मकसद के लिए तो इनका पीछा नहीं कर रहा था, और सबसे बड़ी बात वो अभी तक मंजर से गायब है। मैंने तवक्कुफ करके ज़हूर हुसैन के चेहरे का जायज़ा लिया। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने कहा, इसी तनाजुर में अगर तज्जिया किया जाए तो मास्टर जमील की बनिस्बत गफूर उर्फ फूरी की जानिब ज़्यादा ध्यान जाता है, लेकिन मास्टर जमील की ज़ात भी शक से पाक नहीं है। मैं तुम्हारी बात से पूरा इत्तफाक करता हूँ, मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, और मैंने इस सिलसिले में एक जामे मनसूबा भी अपने जहन में तरतीब दे लिया है। रात को आराम से इस पर बात करेंगे। हम बातें करते हुए थाने पहुँच गए। मेज़बान थानेदार ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हमारी दिन भर की कार्रवाई के बारे में सब्सार किया। मुतल्लिका थानेदार का नाम हक नवाज जंजुआ था। मैंने कहा, जंजुआ साहिब, काम की बातें मालूम हुई हैं, बस यूँ समझ ले कि केस तकरीबन हल हो ही गया है। इस जंजीर की सिर्फ 2 कड़ियाँ कम है, इनको हथकड़ियाँ लग जाए तो इस केस की जंजीर मुकम्मल हो जाएगी। हमें हुक्म करे मलक साहिब। हक नवाज जंजुआ ने जोशीले अंदाज में कहा, इन दोनों कड़ियों को अभी गिरफ्तार करके आपके कदमों में डाल देते हैं। मैंने मुतहम्मिल लहजे में बताया, ये फिलहाल मुमकिन नहीं। एक कड़ी की तलाश में कल सुबह मैं तलम्बा जाऊंगा, मुमकिन है हाथ लग जाए। और दूसरी कड़ी? मैंने जवाब दिया, इसका अभी कोई सुराग नहीं मिला। कौन है वो सूरमा? गफूर उर्फ फूरी बदमाश, मैंने बताया। फिर पूछा, इसका रिकॉर्ड कैसा है? थानेदार हक नवाज जंजुआ ने कहा, दूसरे दर्जे का बदमाश है, चोरी चिकारी, धौंस धांधली और बलवे वगैरह के जराइम में मुलविस रहता है। एक तो मरतबा मैंने खुद अपनी निगरानी में इसकी पुश्त पर लितर भी लगवाए हैं। वो हफ्ता 10 दिन हवालात में भी रहा है। वैसे वो अक्सर कई कई दिनों के लिए इलाके से गायब रहता है। वो अभी तकरीबन 1 माह से गायब है, मैंने कहा, लेकिन इस मरतबा एक कातिल की हैसियत से मुझे इसकी तलाश है। हक नवाज जंजुआ ने ताउन आमेज़ लहजे में कहा, आप फिक्र ही ना करें मलक साहिब, मैं आसपास के इलाकों में इसकी तलाश के लिए अपने आदमी दौड़ाता हूँ। एक लम्हे को रुककर इसने कहा, इसके बारे में एक रिपोर्ट यह भी है कि वो अक्सर जिला झंग में भी जाता रहता है। मैंने कहा, अपने इलाके में इसे छापने के लिए मैंने एक मनसूबा तैयार कर लिया है। मैं सुबह ही अपने एसआई को झंग रवाना कर दूंगा, कुछ ज़रूरी हदायत के साथ। हक नवाज जंजुआ ने पूछा, आपका अपना कल का क्या प्रोग्राम है? मैं अलग सुबह तलम्बा रवाना हो जाऊंगा, मैंने बताया। वहाँ चक 88 आर में मास्टर जमील बहार का घर है। मकतूला आबदा परवीन इसी मास्टर के साथ घर से भागी थी। अगरचे हमारे पास इस फरारनुमा अगवा की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन ये वाक़या मेरे थाने की हदूद में पेश आया है, इसलिए मैं कल ही मास्टर जमील की तलाश में भी सरगर्म हो जाऊंगा। मैंने कहा, अगर मकतूला का बाप पहले ही रोज़ आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवा देता तो मुमकिन है वो जान से ना जाती। इस खबीस बुढ़े को समझाना नामुमकिन है। हक नवाज ने बुरा सा मुँह बनाया। इसकी बेजा सख्तियों और नारवा सलूक ने बच्चियों की जिंदगी अजाब कर रखी है। आपदा से पहले इसकी बड़ी बेटी खालदा भी यही कारनामा अंजाम दे चुकी है। आप तो जानते हैं मलिक साहिब, अगर वर्षा ही कोई दिलचस्पी जाहिर न करें तो पुलिस कहाँ कहाँ एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर इनके मसाइल हल करती फिरे। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, मैंने कहा। मैंने आज मौलवी नूर शाह से एक तवील मुलाकात की है। वो खासा नामाकूल और आकबत नानदेश शख्स है। मजहब की आड़ में इसने अपने घर को जुल्मत कदा बना रखा है। काश ऐसे खुद पसंद और मुतकब्बर वालिदैन के लिए किसी सख्त तरीन सजा की गुंजाइश होती, जो अपने औलाद के हुकूक का ख्याल नहीं रखते, उनकी अना और शख्सियत को कुचलकर इन्हें दुनिया वालों के लिए एक तमाशा बना देते हैं। मैंने कहा, ऐसे अफराद के लिए खुदा का दर्दनाक अजाब है, दुनिया भी रुसवाई और आखिरत में मुंह काला। हक नवाज जंजुआ ने मेरे ख्याल की तर्जुमानी करते हुए पूछा, आपका एएसआई तो कल सुबह वापस चला जाएगा, आपको अपने साथ तलम्बा ले जाने के लिए कुछ अमले की जरूरत हो तो बताएं। इसका फैसला मैं सुबह ही करूंगा, मैंने कहा, और आराम करने के लिए उस तरफ चला गया जहां हमारे क्याम और ताम का बंदोबस्त किया गया था। वो पूरी रात इस केस की गुमशुदा कड़ियों को मिलाते हुए आंखों में कट गई।